all come to this wonderful place called Goa, which makes it a lot easier to invite guests. Because when you say we want to come to Goa for the festival, yes, we want to come. So it's a great event, and this year we are honoring Salim Khan Sahab with the Lifetime Achievement Award, and he deserves it more than anybody else because उन्होंने सबसे बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं और हमारे इंडस्ट्री के बहुत वरिष्ठ और माननीय लेखक हैं और हम चाहते हैं कि उनको पूरा ऑर्डर मिले and may the festival get stronger, better and greater. क्योंकि मैं होस्ट करने जा रहा हूँ तो अभी नर्वसनेस है थोड़ी सी. Let's hope the show goes well and we look forward to a great gathering and all the best to IFFI Goa. सर फिल्म मेकर के लिए कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? यार फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का आना मतलब एक अलग तरीके की रिकग्निशन भी है. ऑडियंस की तो है ही, मगर जो एक फ्रेटर्निटी है, जो एक कम्युनिटी है, जो फिल्में बनाते हैं लोग, इन्वॉल्व रहते हैं हर तरह से फिल्मों में, उनकी तरफ से भी एक रिकग्निशन मिलना और गवर्नमेंट की तरफ से खासतौर पे IFFI गोवा में तो एक अलग तरह का उसमें सुकून भी है और एक अलग तरह की एप्रिशिएशन भी है. Film makers or the film industry in India. I think the most exciting thing is that it's on such a huge international platform. इतने सारे लोग आए हैं पूरी दुनिया से and I think that's a hugely prestigious thing. Next year is the 50th Golden Jubilee for IFFI and that just is a testament to how important this festival is. Really proud to be here to host the closing and I kind of have an idea of who some of the winners are, but just congratulations to the entire team. बहुत मेहनत से इतना बड़ा festival बनता है. Congratulations to everybody in Goa, to the Goa government, everybody, the tourism board, everyone who's put it together. It's a wonderful, wonderful tribute to films from India on behalf of India to the rest of the world. How is it important on the film festival of India in Goa? Yeah. कितना इम्पोर्टेंट लगता है? नहीं, important है. It is important to make brand Goa international. Why do you have this event? This is especially an answer to this Aam Aadmi Party which says that they don't have the vision. You need vision to make brand Goa international. The original intention of bringing the IFFI to Goa in 2004 was also that. And Goa was always there. But there was a need to make this brand Goa international. I think which has been achieved. This year as the first time has missing on miss किया कि चीफ मिनिस्टर आपको क्या लगता है कि बहुत नहीं, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर का ये कंप्लीट विजन है था और इसीलिए 15 साल अभी गोवा परमानेंट वेन्यू बन गए हैं. तो certainly his absence has been felt and however the foundation what he has laid, we have to take it forward. And I think it is left to the people of Goa now to take that forward. सर गोवा में ऐसा इंटरनेशनल जैसा ऐसा प्लेटफॉर्म सब है, बट गोवा में क्या फिल्म इंडस्ट्री नहीं, गोवा में फिल्म इंडस्ट्री को लाने का इनिशियल इंटेंशन था. अभी हम लोगों ने थोड़ा कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, पर फिल्म इंडस्ट्री एक नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है और गोवा में बहुत आर्ट एंड कल्चर का देयर इज एन एबंडेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर. And Goan individuals have always been in the background of the Hindi film cinema. Perhaps this type of events bring them or give them the impetus to come in the foreground. And I think it should be the priority of our government to bring the film industry, establish the film industry. Thank you. सियाबान सांगले की 50 years जाऊच्या पहिले ते सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी New hall and infrastructure. अरे आता सियामान सांगल्या गोष्टी आता तुमच्या जर उतराक ताका धरप ना गेल्या 9 म्हयने तो दुयेंत आहा. पूण जें कितें केलां तें म्हाका दिसता ताणें बरें केलां. ताजें एक सुरवात बरी जाल्ली आहा आनी ब्रँड गोवा म्हणटा ताका इंटरनॅशनल प्रॉमिनन्स मेळिल्लें आहा. ताजे खातीर तें जाय. How was the festival, sir? Let me start with the most important thing, and that's the people. So the hospitality was fantastic. The people at the hospitality, treated us unbelievably. I've been to hundreds of festivals around the world. This was unbelievable. And the people on the street, simple people, just very warm and very kind. This is the most important film festival in India, probably one of the best in the world. And, for me, it was such a great honor, to be here. And this year, it so happens that the festival selected, chose
to have a focus on the Israeli films. Yes. So, you know, I'm coming from Israel, so I'm very proud of it, and I'm glad they selected the kind of films they selected, which reflected the many voices of Israel. So do you like any movie? Watch many movies, I guess you have watched. Yes, movies. it's very interesting because, you know, I come here on many juries, and I was like in Lucknow in a jury, Trivandrum, Bangalore, Kolhapur, many. I'm not speaking about Delhi and Pune and Mumbai, and I see a lot of Indian movies. And but many of them, you know, some are made in Assam, some are made in Chennai, in different. So it is. I know a lot of Indian movies that many Indians don't see because it is so difficult to distribute here, you know, films because of the many languages, and also because many of the films are art films and not the regular commercial film. But I like Bollywood, you know. I think it's very vibrant and fantastic talents there, writers and actors, and of course I like also the art films. They make so many television series. There's so many, and now television has become, you know, like in the past it was cinema that was the daring one, made controversial things. Now television, if you see European, American television, is very, you know, controversial, and a lot of people are interested in television series. So a lot of writers, you know, are hired by television. And also, you know, in my country, also in India, you see that there is a lot of very few original works, a lot of adaptation, or they take formulas which succeeded in the past and they try to repeat successes, and really people with fresh ideas and good, I think, are rare. How is it important on the film? No, I think film industry is extremely important from the tourism point of view. I think movies have such passion, are also such passion that if people go to locations where beautiful movies are made, one Sound of Music made Austria one of the biggest tourism destinations in the world. So movies is about getting people closer together, trying to understand each other. So therefore, movie industry is extremely important for tourism. Yeah. Thank you. क्या अभी अगले साल में क्या तैयारी है फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि क्या प्रॉब्लम न्यू कुछ टूरिज्म के हिसाब से आप No. You asked me about tourism. I'll tell you. टूरिज्म के हिसाब से आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, साथ कोई बड़ा नो, हमारा इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में है। लास्ट ईयर अगले साल में ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री का 7% ग्रोथ था, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का 14%, 14% ग्रोथ था। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, ग्लोबल इंडस्ट्री का रिसीट्स तो 5% ज़्यादा हो गया था अगले साल में। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री का इनकम तो 19.2% एडिशन हुआ है अगले साल में। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा लेटेस्ट वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का हमारा रैंकिंग में इंडिया तो 3rd रैंक में है। इसलिए तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत इम्पोर्टेंस है। फिल्म इंडस्ट्री इसको शूटिंग लोकेशंस में हम ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए तो इंडिया तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपका कई साल देख रहा है कि एक साल 8 साल में वो इससे बढ़िया हर साल हम देखते हैं, और एक परमानेंट उत्सव बन गया, जैसा हमारा कार्निवाल बनता है, शिवोत्सव बनता है, ऐसा एक लोगों के जीवन में एक बड़ा उत्सव बन गया है। और इसके वास्ते गोवा का टूरिज्म और पुष्ट हो गया है, तो हम चाहते हैं वो इसी तरह कंटिन्यू रहे। और मेरे ख्याल से अगले साल तो गोल्डन जुबली में जाएंगे मेरे ख्याल से वो फिल्म फेस्टिवल। और बहुत खुशी है कि गोवा में गोल्डन जुबली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करने का मौका हमें मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सर ये बार ऐसा विदाउट CM का फिल्म फेस्टिवल है, आपको कैसा लगता है कि विदाउट CM? बहुत हमें अंदर से बहुत दुख होता है, क्या करें, एक किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो इतना बीमार होते हैं भी जो सपोर्ट कर रहा है इसके लिए सब कुछ ठीक हो, दिन भर उसका जायजा लेता है, पूछता है कहाँ कुछ कमी ना हो, कि वो हम बैठ के वो देखता है। हम उसके बहुत आभारी होंगे कि जितनी तकलीफ उन्होंने इसके लिए उठाई थी पहले से, उसके बहुत आभारी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि फेस्टिवल जो है वो ताकि यहाँ फिल्में देखते हैं, जो है यंग फिल्म मेकर्स जो हैं उनके लिए कमाल का प्लेटफॉर्म है, तो वो अपना काम दिखा सकते हैं। और ऑब्वियसली वर्ल्ड सिनेमा है, आज दुनिया आती है वो भी देखने को मिलता है। तो मैं
अपना करियर शुरू कर रहा था तो मैं दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में जाता था, और वो जो मैंने फिल्में देखी हैं मुझे आज तक याद है। और कहीं ना कहीं वहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिला जो कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे फिल्म मेकर्स से मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है, उससे हमारा रिश्ता बन जाता है, फिर उनके साथ आप पहुँच जाते हो कि तो ये परफेक्ट जगह है नए फिल्मों से नए एक्टर्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए, नए लोगों के लिए। और गोवा से बेहतर और क्या जगह हो सकती है? नहीं, सही बात है। और मैं तो काफ़ी सालों से यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ, और मैं आई जस्ट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कब बुलावा आएगा। फिर मैं आ रहा था तो मैंने देखा 49th फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल गोवा में, तो मैं लुकिंग फॉर 2019 द 50 ईयर्स गोल्डन जुबली। सर सलीम सर को आज अवार्ड मिल रहा है। इससे बेहतर मैं खुशी की बात ये हो सकती है कि आज सलीम साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है और मैं यहाँ हूँ, और ये मेरा अपना मेरी खुशनसीबी है कि such a big honor, well deserved honor. I'm very happy, and because मेरी पूरे परिवार के साथ दोस्ती है, सलमान के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, काफ़ी सालों से मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, तो जब भी मैं सलमान को मिलने जाता हूँ तो मैं सलीम साहब को ज़रूर मिलता हूँ। और उससे पहले भी जब सलमान एक्टर नहीं भी बना था, जब भी मेरी मुलाकात सलीम साहब के साथ हुई थी, मेरे पिताजी के साथ सलीम साहब की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मेरे ख्याल सलीम साहब मुझे कहते हैं कि पहली बार मुझे मेरे पिताजी उन्हें मिलवाने ले गए थे कुछ प्रोड्यूसर को, एंड बहुत अच्छी बातें करते हैं मेरे पिताजी के बारे में, तो बड़ी खुशी होती है। और सलीम साहब और ये जो उन्होंने फिल्में लिखी हैं वो यादगार फिल्में हैं, दे आर आइकॉनिक फिल्म्स लाइक दीवार, शोले, संजीव, एंड जो उन्होंने नाम, ये सब फिल्में जो हैं वो कमाल की स्टोरी का हम बात करते हैं तो आज एक डायरेक्टर ने कहा था कि आज स्टोरी राइटिंग में कमतरता है पूरे इंडिया में, तो आपको लगता है कि स्टोरी राइटर्स आना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो दौर आने वाला है, हमारी स्टोरीज, हिंदुस्तान की स्टोरीज बनेंगी और वो पूरी दुनिया में पहुँचेंगी। तो जैसे कि अभी मेरा 28 दिसंबर को हमारे प्रोडक्शन का एक शो रिलीज होने वाला नेटफ्लिक्स में, सिलेक्शन डे, वो भी एक 2 बच्चों की कहानी है, 2 लड़कों की कहानी जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, सिलेक्शन डे उसका नाम है। तो इस किस्म की स्टोरियाँ बनेंगी बुक्स पर, पुरानी हमारी हिस्ट्री पर, हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी कमाल की, हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज, ऐसे हीरोज़ हैं, हिस्टोरिक हीरोज़ पर फिल्म बन सकती हैं, कहानियाँ बन सकती हैं, शो बन सकते हैं। न्यूज़ की बात करो, हाँ ऑफकोर्स यार, जो उन्होंने मेरे लिए गाना गाया, माय नेम इज़ एजीओ जी, तो यादगार गाने हैं। दूसरे भी गाने काफ़ी जो हमारी फिल्मों में भी गाए, जो हमने फिल्म यूज़ की, तो बहुत ही मैंने जब ये फिल्म की थी तो उनका एक किस्सा मैंने यूज़ किया बने खाने, जहाँ मैं भी रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा कैरेक्टर। तो मोहम्मद अजीज़ साहब ने क्या किया, कहा कि जब रफ़ी साहब का जब जनाजा जा रहा था तो मोहम्मद अजीज़ साहब ने बहुत ही कीमती जो घड़ी थी उनकी जनाजे में डाल दी, वो इतना चाहते थे रफ़ी साहब, एंड he might not be with us, but his songs will live with us forever. मेरे से देखते हो बहुत खुशी की बात है हमारे पूरे फैमिली के लिए, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ माय फादर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, एंड if he honoring him and giving him such a prestigious award is a great thing, and we are extremely happy and excited, and I'm here to receive the award on his behalf. So looking forward to a wonderful evening today. Thank you sir. के वास्ते बहुत सारा ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के वास्ते ही बना, इससे फिल्म कल्चर जो है वो गोवा में बढ़ रहा है। डेफिनेटली इट विल गिव द बूस्ट टू द फिल्म कल्चर इन द गोवा इन लॉन्ग रन। इट विल बी द गुड वन इंडस्ट्री, इट विल डेवलप लाइक अ इंडस्ट्री। सर फर्स्ट टाइम एज अ विदाउट सीएम से फिल्म फेस्टिवल हो गए, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली तो इफ़ी तो यहाँ पे लाने के लिए हमारे सीएम मनोहर पर्रिकर जी ने यहाँ पे लाई थी, और इस पर सीएम साहब नहीं हैं, इफ़ी की इनाग्रेशन में नहीं है, इफ़ी में आ नहीं सके। डेफिनेटली उसकी तो कमी रह गई है, और उसके वास्ते ही मुझे लगता है जो कुछ कमियाँ हैं इस बार के फिल्म फेस्टिवल में, उन्हीं के वास्ते नहीं वो फॉलोअप नहीं कर सके, नहीं आ सके, थोड़ा गर्व हुआ है।
हाँ थोड़ा सा लग रहा है। यस मेरे फेवरेट राइटर रहे हैं, एक अद्भुत ह्यूमन बीइंग है और बहुत करेक्ट व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट आज 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में मिल रहा है। उस बात का आनंद जो है वो अद्भुत आनंद है। सर कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल? डेफिनेटली ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने ही चाहिए ताकि विदेशों में क्या होता है, अपने देश में क्या होता है, वो अपने देश की कृतियाँ बाहर की कृतियाँ यहाँ हैं, तो ये आदान प्रदान होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं एक सांस्कृतिक आदान प्रदान है। Through your journey, you know, it summarizes and it's like a sense of appreciation और बहुत ही special award होता है ये and I'm glad कि उनको मिल रहा है, बहुत ही deserving है and I'm glad that मैं witness करूँगी जब वो award लेंगे। पहली बार आप जी नहीं, इफ़ी में मेरा पहली बार है एंड हमेशा से इफ़ी मैं फॉलो कर रही हूँ बट फर्स्ट टाइम आई कम हियर। आई एम रियली हैप्पी। कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए और इसके लिए फिल्म फेस्टिवल दिस टाइप आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे आप वेस्ट देखें या इंडियन सिनेमा देखें और अभी डिजिटल के साथ बहुत ही नया टाइप का कंटेंट आ रहा है। सो व्हेन फिल्म फेस्टिवल्स हैपन आई थिंक व्हाट हैपन्स इज दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट schools of filmmaking come together and उससे हमारी फिल्म की ग्रोथ बेटर होती है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड जस्ट टॉक अबाउट डिजिटल मीडियम। अभी बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या लगता है ये मीडियम कितना आगे जाके प्रोजेक्ट मतलब लोगों तक? आई थिंक डिजिटल हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर द मार्केट क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत कम रह गया। आजकल हम लोग थिएटर में तब जाएंगे जब अगर मूवी बहुत अच्छी है। तुम वो कर लो यार अगर मूवी बहुत अच्छी है लोग तभी थिएटर में जाएंगे अगर उनके पास 4 घंटे देने के लिए है, नहीं तो नेटफ्लिक्स लगाएंगे या ब्रेक्स में मूवी देखेंगे। सो आई थिंक दैट्स हाउ डिजिटल हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर द मार्केट। बट द गुड थिंग इज़ बिकॉज वहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन हो गया है इवन इन फिल्म्स द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड द ऑडियंसेस हैव वार्म्ड अप टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स। तो आई थिंक ऑन द होल फिल्म के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नहीं है, सब ब्राइट ही है, देखो सब ब्राइट कलर है, डल कुछ नहीं है। लेकिन जो डल आप बोल रहे हैं वैसा डल नहीं है। लेकिन हमारा हमेशा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहते थे, तो आज हमारे पास हमारे साथ में नहीं है। हमारा जो उसका जो आशीर्वाद है हमारे साथ है, लेकिन इसके लिए आपको लगता है डल हो रहा है। लेकिन एटमॉस्फेयर अच्छा है। फिल्म फेस्टिवल में जो पॉपुलरिटी है अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, उसमें आप जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कम है, डेलीगेट्स भी कुछ कम नहीं, सब कुछ बराबर है। हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट EHG का प्लेटफॉर्म जो ऑनरेबल CM ने चाहता है कि थिएटर विद इन इटसेल्फ, इनोवेशन कंक्लूडिंग विद इन इटसेल्फ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर थिएटर करने के लिए जो चाहते हैं वो थोड़ा डिले हो रहा है, वो जल्दी होना मांगता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। अभी अगले साल 50 का कैसे सेलिब्रेट? अगला साल अगले देखेंगे। ये होने के बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो स्टडी करके अगला साल अच्छा बनाएंगे। It's actually a great platform for filmmakers, for actors, for people who love cinema on the whole to come together and discuss matters, to find out what the audience thinks about films, about various issues, for even filmmakers to talk about. Like we had a very interesting interactive session today. So that was really nice as well. So I think IFFI that way is a great platform to get people from all over India, regional cinema, mainstream cinema as well as international cinema come together. Salim sir को आज Academy Award मिला है, It's amazing, and I think that everybody that's being awarded, big congratulations to them.